Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last time I had started with an array, and I said if you wanted to store more than one value in a single variable, you can go for an array. Instead of declaring so many variables, you can store more than one value in a single array. Okay. So suppose, let me explain you with this with the help of a program. Suppose I want to store 10 values. I want to store 10 values. So I will not declare 10 variables. Rather, I'll say integer a 10. The meaning of this variable is this, I mean, this in A, you will be storing 10 values. What type of values? You'll be storing integer values. So your first value is going to be stored at A0, second is at A1, third is at A2, and the last value will be at A9, right? That means the moment I say A10, the compiler will reserve how many bytes memory for you? A10 means for 10 variables, and each variable is of type integer, so 2 bytes for each. So 20 bytes memory will be reserved for you the moment I say A10. And if I'll say A100, then 200 bytes will be reserved because each integer takes 2 bytes. So if I'm saying A100, where is my first value? Students, if I'll say A100, where is your first value is going to be stored? Hello? A1. Can you repeat? So many times I said value starts from 0. A0 is your first value, and a n minus 1 will be your last value. That means if I'm going for age 10, my first value is at a0 like this. A0 is equal to something, and the last value is at a9 is equal to something. Okay, any number value you can assign. So the value starts from 0, end at n minus 1. Whatever is the size, n minus 1. If it is 10, then last value is at 9. If it is 100, last value is at 99. If it is 1000, last value is at 999. Okay, so A0 is this, A1 is your second value, A2 is your third value, because it starts from 0. Okay, students, hello. Yes, sir. But one disadvantage of an array is right now you have declared an array of size 10. That means 20 bytes are allocated well in advance. But even though if you're not going to utilize all those 20 bytes, that means if I'm just using only one location, maybe some value, okay, that means you have stored the value in one. That means it has happened कि like अगर mall में हम theater में जाते हैं and if you book 10 tickets, you have to pay for all the tickets, whether one person is going or two are going or all 10 are going. But once you have purchased the ticket, you have to pay for all. So here also, if you have booked the memory for 10 variables, whether you are using it one or two or three, if you are not utilizing the other locations, you are wasting memory. Students, getting my point? There is a wastage of memory. But अगर अगर ये ऐसा है कि आपने 10 लोग का टिकट बुक किया है और अभी suddenly one more person is ready along with you to see the movie, you will not get the ticket now. दैट मीन्स अगर हम 10 का वेरिएबल का स्टोर करने का प्रोविजन किया है एंड इफ आई वांट टू स्टोर द 11th वेरिएबल इट विल नॉट अलाउ 11th value you cannot store. If you are storing less, you are wasting memory. But if you want to store more, you will fall short of memory. Extra memory you will not get. Okay? So this kind of memory allocation, we used to call it a static memory allocation. Static, fixed है. कम वैल्यू डालेंगे तो मेमोरी उतना ही रहेगा, वो श्रिंक नहीं होता है. मेमोरी जैसे हमारे 100 वेरिएबल्स हैं और लेकिन मैंने एक ही वेरिएबल स्टोर किया है तो केवल 2 बाइट यूज होना चाहिए. वाई 200 बाइट्स आर गेटिंग यूज्ड, सो साइज श्रिंक नहीं होगा. और ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो एक्सपैंड भी नहीं होगा. स्टूडेंट, हेलो हेलो, Yes, sir. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Array ka only advantage is that you can store one more than one value at a time. So initially when we are using variables, that time you have seen that
If you want to store more than one value, you have to declare more than one variable. But how many variables? To overcome with that problem, we are doing an array. But array ka advantage and disadvantage, I'm telling you both. Disadvantage is that even though you are storing lesser value rather than whatever you have declared, it will not, you cannot shrink its size. Whatever is declared is declared. That means if I say a thousand, इट्स लाइक कैटरर वाला स्टूडेंट, घर में कुछ प्रोग्राम है, अगर आपने उसको बोल दिया सर मेरा 100 थाली रहेगा और 10 ही लोग खाने आएंगे तो पैसा तो पूरे का देना पड़ेगा, राइट? और लेकिन अगर 100 की जगह 200 लोग आ गए तो क्या होगा? मिलेगा सबको? कम पड़ नहीं जाए? तो कोई नहीं मिलेगा। ये वैसा बात है सर। तो ये एक्स्ट्रा भी अरेंज नहीं कर सकता है और कम होएगा तो पेमेंट पूरे का देना है करके। कम लोग आएंगे तो पेमेंट जितना आपने बोला था उतने का आपको देना पड़ेगा। दैट मीन्स उतना मेमोरी वो ब्लॉक करके रख देगा। भले ही कोई आएगा नहीं आएगा उसका लुकआउट नहीं है। ओके, सो आई होप वी कैन अंडरस्टैंड द एरे विथ एन एग्जांपल। दूसरा एक एरे का बात होता है कि अगर आपने यहाँ पे A10 बोला है, सो द ऑल द 10 मेंबर्स शुड बी of integer type. That means I can write A0 is equal to, say 56 is my first member, but can you write A is equal to 3.75? Is it possible? no. No. That means all the members should be, all 10 members should be integer only. I cannot write A2 is equal to X. Is it possible? No. A3 is equal to A3 is equal to SIS. Sir, these things are not allowed. You will get an error. All the values should be an integer type only. Homogeneous kind of data is stored. Heterogeneous kind of data will not work in array. You said integer, so only integer. But if I'll say float, float means it can store the real number. So 10 float values can be stored. Then this integer wala to will work. A0 is 56 will work because it will put the decimal later on, right? Like this. But this X and SIS will not work if it is declared as float, right? Students. Yes. Yes. So you should have always the similar type of elements. So can I say array is like a family? Real life example. Array is like a family where the members in the family are of similar type of, or even our neighbors used to come and stay with us. Can I say array is like your class, your FY IT class, where the students are of same class, same college, or even SYs are also there along with you, or some other college students are also there with you? Only FYI. Only FYs are there. So that is what. So once I say array, it's a similar type of elements. Once I say your class, you know that you're all FY IT students. Even CS students are not here. No other college students are there. Can I take example of some office? In the office, college office or any other office, you have the similar staff. Even outside person walking on the road doesn't come inside the college. And if I say college as a array, so you have all SIS students inside the college. Outsider will not come and learn along with you, right? If he or she is not a part of the college. So similar type of elements are stored in the, like I said, took the example of family. Family is similar type of members. Dissimilar members are not allowed. You cannot call them as a family. But again, definition changes. If you take your society where you're staying together, all the same society members can stay together. Again, family, bigger family. I told you a lot about an array. First of all, it does the memory allocation before you run the program. Whatever memory is being allocated, it is fixed. It cannot be reduced. It cannot be increased also. You cannot reduce that memory number of bytes. You cannot increase also. Whatever is allocated is fixed. Okay? Is that clear, students? It's okay.
Yes, same number. What is the meaning of two numbers same number in two different arrays? I'm can I give you the example? What your name is CAF? Can I have one CAF in FYIT and second CAF in SYIT? Is it allowed? That is your answer. SY is also array is an array. FY is also an array. Can we repeat the names of the students within the class? Is it allowed? Even not between the class. It is not between the class. I can have 3 CAF, 4 CAF, any number of CAF in the same class. Like A0, you said A0 is equal to 10, right? Even A1 can be 10. Who told that you cannot have the same value? It can have. Both are different. Two students have got the same marks. आप कैसे बोलोगे इनको same marks कैसे आ गया? Right? Students? Three students got the same marks. So similar values can be stored. That's not a problem. But each one will be treated differently. A0 is 10 is the marks of the first student. A1 is 10 is the marks of the second student. A2, all of them have scored full marks out of 10. हाँ सबको 10-10 आ गया चलेगा no problem, right? Student, is that clear? Yes. अगर ये हमारा एजेस है सबका एज, अब आज की रेट में एज सब 19 में चल रहे हो तो बहुत सारे बच्चों का एज 19 हो जाएगा. आई रिपीट 19 so many times, right? Yes, no. Yes, so similar values, you can have similar values, that's not a problem. So I hope you'll have understood what in the array. Array is a collection of similar type of elements, that is one. Second, one more point you should keep in your mind that all these elements are stored in a continuous memory location. What is a continuous memory location? ऐसा नहीं है जब मैंने फैमिली बोला है तो सब लोग एक घर में रहते हैं कि मैं एक घर में मेरा ब्रदर सिस्टर मदर फादर कहीं दूसरा घर में रहते हैं. Family, once you say family, all of them are staying together. So once I said A10, all these 10 members will be staying together. It is not that A0 memory का एक corner में पड़ा है, A1 कहीं और पड़ा है, A2 कहीं सब. ऐसा dispersed family नहीं रहेगा, joint family रहेगा, right? Nuclear family जैसा नहीं रहेंगे. Students, hello. The moment I can, Yes. अगर मैं A0 के पास में गया तो बाजू में ही A1 भी रहता है, A2 भी रहते, सब एक दूसरे के पीछे रहते, इधर उधर नहीं रहते. They're all staying together. अगर A100 है तो all my 100 elements will be in one place. They are not like a nuclear family. A0 इधर है, थोड़ा लोग इधर रहते हैं, थोड़ा दूसरा जगह रहते हैं, थोड़ी दूर के बाद में memory location. No. All 100 elements will be staying together, will be stored together continuously. Once I'll get first element, you also can see the second element, third element, fourth element, one followed by the other immediately. In between, no other elements can come and take the place. All elements will be stored continuously. So first point of an array, similar type of elements. Okay, what is an array? Array is a collection of similar type of elements, similar type of values. Second point, all the elements of an array are stored in a continuous memory location. अगर मेरा पहला वैल्यू है तो immediately second value will come, third value will come. They will not be segregated here and there. Okay? अगर आपको ये चीज देखना है तो I can show you this. Right now I'm having 10 values. I have made a provision for 10 values. And let us say I wanted to take 10 values from the user. 10 वैल्यू मुझे यूजर से चाहिए और उसको हम लोग ऐड करते हैं. मैं बहुत कुछ ये प्रोग्राम में दिखा दूंगा आपको. और 10 वैल्यू लेने के लिए आर यू गोइंग टू राइट 10 टाइम्स scanf स्टूडेंट्स या 10 टाइम्स %d in one scanf स्टूडेंट्स. यूजर से मुझे 10 वैल्यू चाहिए तो scanf के अंदर मैं 10% लिखूं 100% लिखूं, ऐसा चलेगा नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? मैं यहाँ पे यूजर को सिर्फ इतना बोल रहा हूँ एंटर 10, या तो मैं ऐसे फॉर लूप आई वांट फॉर लूप में ले रहा हूँ. फॉर को मुझे मालूम है 10 वैल्यू लेना है
तो मैं i इज इक्वल टू 0 से चला दिया और ये 9 तक चलना चाहिए, लेस देन 10 इसके लिए मैंने बोला, बिकॉज 9th इज माई लास्ट वैल्यू, 0 इज माई फर्स्ट वैल्यू। आई एम टेलिंग यूजर को, मैं बोल रहा हूँ बाबा तुम एंटर एंटर परसेंट डी वैल्यू, परसेंट डी वैल्यू मतलब एंटर वैल्यू, एंटर वन वैल्यू, टू वैल्यू, वन वैल्यू, टू वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, 10th वैल्यू एंड सो ऑन। ओके, एंटर, बट आई कैन नॉट से एंटर जीरो वैल्यू। एरे के लिए वो जीरो है, यूजर के लिए वो फर्स्ट वैल्यू होगा, एरे के लिए वो 9 होगा, हमारे लिए 10th वैल्यू होगा। So that's why I said I 0 है तो I plus 1. So it will say enter one value. It doesn't mean that you are entering one. You can enter any value. Okay? And scanf. अब scanf में मैंने एक बार परसेंट डी लिखा और मैंने देखो एम्परसेंड ए आई 0, सो ए 0 में पहला वैल्यू स्टोर हो जाएगा, राइट? एंड देन अगर मुझे सिर्फ ये डिस्प्ले करना है, मैंने क्या वैल्यू लिया है, कितना वैल्यू लिया आपने, कितना वैल्यू लिया है स्टूडेंट्स? 10 को डिस्प्ले कर, 10 को डिस्प्ले करने के लिए कितना, क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा 10 बार डिस्प्ले करने के लिए, राइट? Yes. तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, देखो अभी मैं डिस्प्ले करूंगा, आपने जो वैल्यू लिया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जस्ट मैं मैसेज दे रहा हूं, printf entered value, entered values, what are your entered values? भी आपने एंटर किए हैं। अब मैं इसको स्कैनफ की जगह मैंने प्रिंट को बोल दिया, प्रिंट भाई जरा तुम डिस्प्ले करो, और स्पेस कर देंगे और ये निकल जाएगा। तो फॉर लूप क्या कर रहा है, वही वैल्यू जो 10 वैल्यूज हैं A0, A1, A2, A3 सबको डिस्प्ले कर देगा। चलो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट आई नीड टू सेव दिस प्रोग्राम। मैंने कुछ नहीं किया, 10 वैल्यू रीड किए हैं और उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं बस। और फॉर लूप क्यों लगाया सर? क्योंकि आई डोंट नो राइट scanf A0, scanf A1, scanf A2। वुड यू लाइक टू राइट दैट? वो लिखना है तुम्हारा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? क्या कर देना चाहिए मुझे उसको लूप के अंदर रिपीट कर देना चाहिए। I should repeat that. Save as array1.c। रन किया हमने, ये पूछ रहा है एंटर वन वैल्यू, आई सेड 10, सेकेंड वैल्यू आई सेड 20, थर्ड वैल्यू आई सेड 30, फोर्थ वैल्यू आई सेड 40, फिफ्थ वैल्यू 50, सिक्स वैल्यू 60, सेवेंथ वैल्यू 70, एट्थ वैल्यू 80, नाइन्थ वैल्यू 90। I can enter any value, that's not a problem. So just have a look here. तो entered value क्या है हमारा स्टूडेंट, जरा देख लो हमने क्या एंटर किया था। Can you see the values? Yes, sir. तो हमने ये 10 वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर है कि बहुत सारे वेरिएबल के अंदर है? कौन सा वेरिएबल नेम है? ए के अंदर में यू कैन हैव 10 वैल्यूज, नॉट ओनली 10, जस्ट चेंज द साइज। अगर आपको ज्यादा स्टोर करना है, बट आई डोंट नो एंटर सो मेनी वैल्यूज, सिर्फ आपको ये नंबर चेंज करना है और यहाँ पे उसका ये चेंज कर देना है, राइट? आप कितना वैल्यू ले लेगा स्टूडेंट्स? आप कितना, आप 100 वैल्यू आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो आर यू डिक्लेयरिंग 100 वेरिएबल्स और इन वन वेरिएबल यू आर हैविंग 100 वैल्यूज? क्या हो रहा है? In one variable. One variable 100 value. अगर हमको 1000 करना है तो क्या करना चाहिए? यस, 1000 टाइम रीड करेंगे और 1000 टाइम डिस्प्ले कर देंगे, राइट? तो ये अच्छा है कि वो 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करके करना था, वो अच्छा रहेगा। ये अच्छा है। फॉर लूप क्यों लगाया हमने इसको? क्योंकि आपको Scanf. हाँ स्कैनएफ को और बार बार बोलना है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ, बार बार आपको बोलते रहना और रीड करते रहना है, राइट? Yes, sir. Yes. और डिस्प्ले करने के लिए भी आपको अगर 1000 वैल्यू डिस्प्ले कराने हैं तो आपको फॉर लूप चाहिए कि 1000 टाइम प्रिंटफ लिखोगे?
और लूप चाहिए बहुत बड़ा है। या एक प्रिंटफ के अंदर में 1000% डी लिखोगे, क्या बेटर है? और लूप लिखना बेटर है। स्कैनएप में 1000% ही चलेगा नहीं ना? जैसे पहले 3 वैल्यू रीड करते थे, अब 3 बार परसेंट ही करते थे। अगर 1000 वैल्यू रीड करनी तो आर यू गोइंग टू से 1000 टाइम परसेंट डी कॉमा फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल एंड सो ऑन 1000 वेरिएबल, चलेगा ऐसा? हम्म, नो नो। नाउ अगर यही क्वेश्चन को अगर कोई कह रहा है कि सर ये एरे में ये जो भी वैल्यूज है इनका सम कर दो, मतलब आई वांटेड टू फाइंड आउट सम ऑफ दीज वैल्यू व्हाटएवर आई विल एंटर, उनका मुझे सम चाहिए। 10 वैल्यू, कोई भी 10 वैल्यू, 10 बच्चों के मार्क्स हैं, उनका टोटल कितना है सर? तो कर देते हैं हम लोग 10 वैल्यू का सम अप कर देते हैं। जैसे ही मुझे देखो फर्स्ट वैल्यू मिला है, द मोमेंट आई गेट फर्स्ट वैल्यू इमीडिएटली आई स्टोर दैट वैल्यू ए जीरो को मैं सम में स्टोर कर दिया। So first time you are reading A0, that immediately before I'll take up A1 is getting added with sum. Second time when you're reading A1, immediately I'll add with the previous sum. Third time सब जितना A0, A1, A2, A3 रीड करते रहोगे लूप के अंदर है, सब ऐड भी होता जाएगा, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? और फिर अगर इनका समेशन आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर लो। हम चेक कर लेते हैं। printf एक सम इज इक्वल टू कितना हुआ? printf sum is equal to %d, sum। यानी सम भी कर रहे हैं 10 वैल्यूज का, 20 वैल्यूज का, जितना का भी करना है कर लो, जस्ट आपको एरे साइज चेंज करना है, फॉर लूप के अंदर चेंज करना है, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग रन करते हैं 10 वैल्यूज, एंटर फर्स्ट वैल्यू, आई एम सेइंग 5 5 5 5 5 5, सब मैंने 5 5, सबको सेम मार्क्स आया हुआ है, राइट? ये 11th कहां से आ रहा है? ये 100 तक का चल रहा है क्या? ओ, ये इसके लिए मैं तो परेशान हो गया, मैं बोला ये कितना चलाएगा। ठीक है, 10 values, I said 5 5 5 5 5 5, can you see the answer? 50 बराबर है? yes sir. So you can enter different, just I entered 5 5 purposely so that easily you can verify whether the answer is right or wrong. You can enter different numbers, सब 10 का 10 वैल्यू अलग अलग एंटर करो, that's not a problem, right? Now suppose somebody is asking you, I'll give you the list of numbers, अगर मैंने आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं और वो 10 नंबर दिए, उसमें कुछ पॉजिटिव हैं, सम आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव, कैन यू टेल मी हाउ मेनी आर पॉजिटिव, हाउ मेनी आर नेगेटिव? या चलो मैंने 10 बच्चों के मार्क्स दे दिए, 100 बच्चों के मार्क्स दे दिए, आपको आउट ऑफ 100 का मार्क्स दे दिया। आप वो 100 बच्चों के मार्क्स का एक एवरेज निकालो, जैसे किसी को 57 है, 47 है, 89 है, 92 है, 68 है, 78 है, तो इसका एक एवरेज निकाला हमने। एवरेज कैसे आएगा? सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? यस और नो? और फिर अपने को चेक करना है, ये क्लास में टीचर ये देखना चाहते हैं बाबा ये एवरेज के नीचे वाले कितने बच्चे हैं, जरा इनको मुझे स्पेशल कुछ पढ़ाना पड़ेगा, स्पेशल इनको मुझे थोड़ा हार्डवर्क कराना पड़ेगा, ये तो एवरेज के नीचे वाले हैं, हाउ दे आर गोइंग टू मेक अप देयर फ्यूचर। सो एज अ टीचर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि आई विल टेक द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स and then I will try to find out the average of my class, and I wanted to find out those students those who have got below average, how many are below average, how many are above average, how will you find out students? तो चलो अगर इसको यही प्रोग्राम को मैं चेंज कर रहा हूं, फाइल सेव एज array2, एरे का 2 है ये, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज, एक सम तो चाहिए एवरेज निकालने के लिए पहले, फिर बिलो एवरेज अभी हमारे पास कितने हमको पता नहीं, बिलो एवरेज इज 0 राइट नाउ एंड अबव एवरेज इज ऑल्सो 0 राइट नाउ। मैं 10 बच्चों का मार्क्स ले रहा हूं, सिर्फ 10 के ऊपर काम करूंगा मैं, और मुझे एक एवरेज निकालना पड़ेगा। फिर एवरेज के लिए आई हैव टू डिक्लेयर फ्लोट एवरेज, एक वेरिएबल है हमारे पास में,
Let me find out the average first. After adding the values, let me find out the average. Average is equal to जो भी sum है divided by 10.0 will give you the average. आपको average मिल गया, right? Summation divided by the total numbers will give you the average. कितने students के marks है आपके पास में? 10 students के, right? Students. Is that clear? Yes. Average मिला कि नहीं मिला आपको? Average मिल गया है कि नहीं मिला? आप ये बताइए. Average मिला है? आपने एडिशन कर लिया और एवरेज मिल गया. अभी हमको देखना है कि सर कितने बच्चे एवरेज के ऊपर हैं और कितने एवरेज से नीचे हैं. सो 10 बच्चों का मुझे चेक करना है, मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा उसके लिए. आई नो वेल इन एडवांस हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड्स टू बी चेक्ड बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज. सो आई एम जस्ट चेकिंग इफ AI, that is A0, अगर A0 का मार्क्स is greater than your average marks, अगर A0 का मार्क्स is A0, फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स इज इट ग्रेटर देन एवरेज, अगर है तो हम इसको बोलेंगे AA प्लस प्लस, ये अबव एवरेज वाला बच्चा है. एल्स अगर वो नहीं है तो मतलब अगर वो ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा? ओनली टू पॉसिबिलिटी, इट इज गोइंग टू बी लेस, Less. राइट? तो देन आई विल से इट इज बिलो एवरेज वाला है सर. इफ AI is not greater than average, then it is lesser than average. That means it's a below average will be added. Is that clear, students? Yes. Hello. Yes. And then you got everything. आपको एवरेज भी पता चल गया, अबव एवरेज भी पता चल गया, बिलो एवरेज भी पता चल गया. अब आप एक काम करो, सब डिस्प्ले कर लो. सम डिस्प्ले था, आप एवरेज भी डिस्प्ले कर लो. printf average marks is equal to %f और एवरेज क्या था हमारा? AVG. इसके बाद में मुझे चेक करना था printf above average और number of students above average is equal to %d, AA. printf below average is again %d is BA. मुझे सब कुछ मिल गया, all the values. Let me put /n so that all of them will be displayed one below the other. आपको ये बात समझा है क्या एवरेज कैसे आया? ये वाला. उसके बाद में अब मुझे एवरेज अगर मेरा 56 है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि मुझे 56 के नीचे कितने मार्क्स हैं और 56 के ऊपर कितने मार्क्स हैं, राइट? तो मैं फर्स्ट से काउंट करूंगा. चलो कैप का कितना मार्क्स है? बोलते हैं 43. तो मैं पहला स्टूडेंट्स का मार्क्स लिया, आई सॉ 43. इज 43 इज ग्रेटर देन 56? बोलो. So Yes. what will be added? BA will be added or AA will be added? Below A, average. so BA stands for below average will be added. BA plus plus. Now I went to second student. He said, sir, my marks is 54. So is it greater than 56 or more than 56? Or sorry, less than 56? 54. So what will happen? Below, Which lesser. तो क्या ऐड होएगा? BA प्लस प्लस फिर से हो जाएगा. तो BA पहले Below. 1 हुआ था, अब एक और हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट? Yes. I went to third student, third marks. He said, sir, my marks is 68. So is 68 is greater than 56? Yes. So what will be added? कौन सा प्लस प्लस AA. होएगा? AA ऐड होएगा. तो AA 1 हो गया और BA 2 हो चुका है अभी तक, राइट? Yes or no? Yes. Now similarly, I'll take the next students. How many students से आप बात करने वाले हो? How many students का marks you are going to check? 10 students का, right? Yes. So that's why you should have this in the loop, because some of them are above average, some of them are below average. So whoever is above average, AA will be plus plus, and those who are below average, उसका BA plus plus होएगा, right? कुछ भी variable name दे दो. It is not that you should have A and BA. आप word भी लिखोगे. Variable name can be anything, students. ठीक है? Is that clear? Yes. And then later on, I'm displaying all your values. तो अब जरा हमारा प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं, रन करते हैं हम लोग. चलो मार्क्स दे देते हैं. पहले बच्चे का 43.
दूसरा बोलता है 56, तीसरा बोलता है 76 और 89, फिर बोलता है सर मेरा तो 32 ही आया है, फिर कोई बोलता है मेरा तो जस्ट 41 है सर, फिर बोलता है मेरा 52 है, फिर 83 है, 74 है, मे बी 38 है। अब जरा चेक करो, एवरेज आ गया आपका 58, 58 यहाँ का एवरेज 584 डिवाइडेड बाई 10, राइट स्टूडेंट? टोटल सबका 584 है, डिवाइडेड बाई 10 तो 58.4। तो 58 के नीचे कितने हैं स्टूडेंट्स? जस्ट चेक, 58 से नीचे कितने हैं? 43 है, 43 है, 56 है, 32 है, कितने हैं? 1 2 3 41 4 52 है। 32। तो 6 लोग देख लो, आपको बिलो एवरेज दिखाई पड़ रहे हैं, राइट? और 58 से ऊपर, Yes. 58 से ऊपर कितने हैं? 58 से ऊपर कितने हैं? 76 है, 89 है, 83 है, 74 है, राइट? जी। तो आप टीचर क्या करेगा यहाँ पे? बोलेगा चलो 58 से नीचे वाले जो बच्चे हैं प्लीज कम हियर, तुम्हारे लिए अब हार्ड वर्क करना है, असाइनमेंट देंगे, टेस्ट कराएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे, राइट? उनके भी मार्क्स को इम्प्रूव कराना है। और जो एबोव एवरेज है उनको भी थोड़ा हार्ड वर्क कराना है, उनको मेरिट होल्डर बनाना है, उनको और थोड़ा रिगरस ट्रेनिंग देंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्लास को आइडेंटिफाई कर लेंगे सबका मार्क्स लेने के बाद में। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा एवरेज मार्क्स क्या है और उसके ऊपर कितने और नीचे कितने हैं। तो दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे हम लोग फिर, राइट? आप समझ रहे हो कि नहीं? जिसे गवर्नमेंट कैसे बोलता है, गवर्नमेंट कैसे बात करते हैं कि भाई हमारे इंडिया का एवरेज इनकम क्या है, पर फैमिली एवरेज इनकम क्या है, हाउ मेनी फैमिलीज आर बिलो एवरेज एंड हाउ मेनी आर अबव एवरेज, कैसे फाइंड आउट करते होंगे वो लोग? ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, राइट? हर एक फैमिली का आप इनकम दे दो उनको, तो एक एवरेज इनकम आ जाएगा, तो वो इनकम से नीचे कितना है और ऊपर कितने हैं, राइट? एक कंपनी है, कंपनी में सबकी सैलरी अगर लेना है, 1000 लोग काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी लो, ले बोले एवरेज सैलरी क्या है, बोले जो भी एक्स वाई जेड एवरेज सैलरी आएगी, बोले ये एवरेज सैलरी से नीचे कितने लोग हैं, ऊपर कितने लोग हैं? कैन वी फाइंड आउट ऑल दिस? यस नो? यस तो ये एवरेज एवरेज हमारे काम की चीज है कि नहीं है रियल लाइफ में? है। है, बहुत काम की चीज है। कोई बिजनेस है, बिजनेस कोई बिजनेसमैन देख रहा है मेरा मंथली एवरेज यार रोज का, एवरेज एवरेज बात करेगा, बोले रोज का मेरा 10,000 बिजनेस हो रहा है, रोज का 10,000, तो कितने दिन 10,000 से ऊपर है, कितने दिन 10,000 से नीचे है? बोलता है चेक किया तो उसने देखा कि केवल 5 दिन 10,000 के ऊपर है, मे बी 20,000 30,000, बाकी सब दिन 10,000 से नीचे। क्यों भाई, क्या पॉलिसी है तुम्हारा? 25 डेज आप 10,000 से नीचे रहते हो, 5 डेज ही आप ऊपर चलते हो, तो आपको कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, राइट? यस और नो? यस। तो ये हर जगह बिलो एवरेज अबव एवरेज, तो अरे एक एडवांटेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यस। तो अगर मान लो मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूं कि अगर मेरे पास ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या 10 स्टूडेंट्स की सपोज ये रोल नंबर है, और मुझे देखना है कि भाई इसमें ये बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं, दैट मीन्स गिवन 10 वैल्यूज, आई वांटेड टू सर्च अ वैल्यू विद इन द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। आप क्वेश्चन समझ लो, यू हैव बीन गिवन 100 वैल्यूज और आपको बोला गया है जरा ये नंबर, जैसे 100 लोगों का फोन नंबर दे दिया आपको और बोले जरा ये लिस्ट में देखो 100 नंबर है क्या, मेरा ये वाला नंबर प्रेजेंट है क्या? 100 लोगों का लिस्ट नेम्स दे दिया आपको और उसमें बोलेंगे देखो इसमें कैफ अली है क्या, तो कैसे सर्च करोगे आप? एक सर्च बार में कैफ लिखना है, लेकिन प्रोग्राम में कैसे करेंगे हम? प्रोग्राम में आपको कैप को लिस्ट 1 से पहले नेम से मैच करना चालू करोगे, द फर्स्ट नेम इज कैफ अली, सेकंड इज कैफ अली, थर्ड इज कैफ अली, जहां पे मैच हो जाएगा वहां पे आपको स्टॉप कर देना है, राइट? और मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो कब तक सर्च करना है? जब तक ना मिले। और मिल जाता है तो फिर भी सर्च करना है कि स्टॉप कर देना है? नहीं, स्टॉप ब्रेक करना है। ब्रेक करना है, यस। मिल जाएगा तो ब्रेक करना है, नहीं मिला तो बोलेंगे मिला ही नहीं, इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, राइट? अब समझ रहे हो? तो अब जब इतने रोल नंबर या रोल नंबर लिखना या नाम लिखना, जो भी आप सर्च करते हैं, फोन नंबर सर्च करना है, रोल नंबर सर्च करना है, नेम सर्च करना, वट एवर इट इज,
So if you are writing so many names or numbers, you need an array or you will be storing them in a variable. कहाँ पे store करोगे? Array. Array. Array बस array में store करो. Yes. So I'm storing 10 names से, sorry numbers. मैं 10 numbers store करूँगा. मैं array 3 कर रहा हूँ यहाँ पे. Array 3.c और 10 numbers मैं store करता हूँ यहाँ पे. उनका सम वम कुछ नहीं चाहिए. फिर आपसे मैं एक नंबर मांगने वाला हूं कि सर कौन सा नंबर आपको सर्च करना है वो बोलो. तो 10 नंबर्स मेरे पास आएगा. मैं 10 नंबर्स रीड कर लिया. ये मैं हटा दिया. ओके, जस्ट आई रेड द 10 नंबर्स. देन आई विल आस्क यू, एक और बात क्वेश्चन कर रहा हूं मैं. printf enter the number to be searched or to be found. जिसको आपको फाइंड करना है, आप वो नंबर बताओ अब मुझे. पहले आप 10 नंबर मुझे दे दो. ठीक है, 10 नंबर, 100 नंबर. आई एम नॉट टेकिंग 100 बिकॉज बहुत देर तक एंटर करना पड़ेगा इसके लिए. बट द सेम प्रोग्राम विल वर्क फॉर 100,000, 10,000, whatever it is. That's not a problem, right? Students, I hope you must be getting why I'm taking 10, right? नहीं तो उतना देर एंटर करते कौन बैठेगा. तो मैंने आपसे पहले 10 नंबर पूछे, आपने 10 नंबर्स दिए. फिर मैंने आपको बोला कि आप मुझे वो नंबर दो जो आपको सर्च करना है. मैंने वो नंबर भी ले लिया. आप क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? आप मुझे ये नंबर को सर्च करना चाहिए. कहां से सर्च स्टार्ट करोगे? पहले नंबर से कि दूसरे से? पहले नंबर. पहले नंबर से. पहला नंबर कहाँ रहता है? कुर्ला में, घाटकोपर में, मटमका में, कहाँ पे है? A0 में. यस, पहला नंबर A0 में रहता है. टेबल में. यस, वेरिएबल में, मतलब A0 में रहता है. सो आई विल ट्राई टू चेक if I'm just checking, is my A0, is my A0. I won't say A0 here, I'll say AI because I is 0. So I'll say AI. Is AI equal to X? कंपैरिजन करना है. क्या A0 मेरा X है? क्या A1 मेरा X है? Is A2 is my X, right? जो I do not know which number will match. जो भी मैच होगा तब आपको क्या करना है? ब्रेक कर देना है. ब्रेक करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे. मैं यहाँ पे फिर से वही प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ. प्राइम नंबर का मुझे ऐसा, मैं बोल रहा हूँ नंबर नहीं है लिस्ट में. मैंने बोला स्टेटस इज 0. 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू. तो मैं बोला कि नंबर स्टेटस अगर मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा 1 मतलब ट्रू, और नहीं तो मेरे 0 करके रखा हुआ है. नहीं, नंबर इज स्टेटस इज 0 मतलब नंबर नहीं है लिस्ट में. स्टेटस इज मतलब फॉल्स. 0 मतलब फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू. ट्रू मीन्स नंबर इज फाउंड, फॉल्स मीन्स नंबर इज नॉट फाउंड. बस दो बात है. प्रोग्राम में दो चीज करना है, आइदर you'll get the number or you'll not get the number. So I'm going with an assumption that the number is not present. But the moment there is a match, I found out the number, immediately I'll change my statement. I'll say status is 1, right? और एक चीज और हम बताएंगे कि ये नंबर है कहां लिस्ट में, इन विच पोजीशन, दैट आल्सो आई विल टेल यू, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, एक पोजीशन वेरिएबल ले लेता हूं, पोजीशन P. ओके, एंड P अगर मान लो पहला वैल्यू ही मैच हो गया तो पोजीशन कौन बताएगा? पोजीशन मेरा I बताएगा. I, बिकॉज अगर I 0 है और मैच हो गया, A0 इज X, तो मैं ये नहीं बोलूंगा. तो ये मेरा पोजीशन मुझे दे रहा है कि कहां पे, अगर वो 5 पे मैच हुआ है, व्हेन I इज 5, तो पोजीशन 5 मतलब में वो वैल्यू प्रेजेंट है. तो कोई बताएगा, कोई बोलेगा लिस्ट में वो है कहां पे जरा बताओ मुझे, मैंने देखा, मुझे तो नहीं मिला. मैं बोलूंगा जाके 76 वैल्यू देखो, जाके 4th वैल्यू देखो, वहां पे प्रेजेंट है वो, राइट? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते स्टूडेंट्स? हेलो. तो अगर मैच हुआ है तो इतना ही मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं अपने यहाँ कि बता भी दो है तो भी बोलेंगे कहाँ है, मैंने तो देखा, आप मुझे बताओ कहाँ है. तो फिर भी उनको बताना पड़ता है, राइट स्टूडेंट्स? हेलो. तो उनको हम पोजीशन भी बता देंगे. तो अब मैं चेक करो मेरा स्टेटस क्या है. इफ स्टेटस इज इक्वल टू 1 हो गया है, मैं स्टेटस को चेक कर रहा हूं, तो व्हाट विल आई से? आई विल से %d is
फाउंड मतलब आपका जो नंबर है वो फाउंड हुआ है एंड इज प्रेजेंट एट, मिला है और कहाँ है वो भी बता रहा हूं। x इज फाउंड, दैट नंबर इज फाउंड एंड इज प्रेजेंट एट p+1। सर p+1 क्यों किया आपने? अगर i 0 था तो p 0 हो जाएगा, तो आप ये नहीं बोलोगे प्रेजेंट एट 0, आप बोलोगे प्रेजेंट एट फर्स्ट प्लेस, राइट? प्रेजेंट एट 1, राइट? यस और नो Yes, sir. स्टूडेंट? अगर i 9 है तो p 9 हो जाएगा। p 9 मतलब आप वो 9th प्लेस में नहीं है, वो 10th प्लेस में है, राइट? yes, अगर मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, अगर i 0 है, a 0 मैच हो गया, फर्स्ट वैल्यू ही मैच हो गया, तो व्हाट इज, या तो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, यू विल गेट एन आइडिया। यहां पे ही चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मैंने i+1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 0 है तो p को क्या वैल्यू मिलेगा? 1। तो आप क्या बताओगे? वो फर्स्ट प्लेस में है, राइट? 0 प्लेस यूजर को कैसा लगे? बोले 0 क्या होता है? वो तो हमारे लिए है ना, प्रोग्रामर के लिए, राइट? तो न्याय की नहीं है स्टूडेंट्स? yes, अगर वो 1 प्लेस पे है, मतलब A1 मैच हुआ है, तो आप बताओगे सेकंड वैल्यू में है, राइट? सेकंड वैल्यू इज योर नंबर, सेकंड वैल्यू इज योर सर्च वैल्यू, राइट? स्टूडेंट आप मेरी बात समझ रही है? yes, sir. अगर मान लो 0 में मैच हुआ, 0 में मैच हुआ, अभी चलो मैं तुमको प्रैक्टिकली ही दिखाता हूं, मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगा। सो देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। सो स्टेटस इज प्रेजेंट, देन यू विल से लाइक दिस, एंड इफ इट इज 0 तो आप क्या बोलोगे? अगर 0 ही रहेगा तो क्या बोलोगे स्टूडेंट? स्टेटस अगर 0 रह गया तो आप क्या बोलोगे? False. Number will not be there, no? परसेंट इज नॉट फाउंड, नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो मैं पोजीशन थोड़ी नहीं बता सकता, राइट? Yes, sir. Yes. यस, मिलेगा तो मैं पोजीशन बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं कहां से पोजीशन बताऊं कहां पे है, राइट स्टूडेंट्स? तो आप देखो प्रोग्राम को, कितना अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले आराम से देखना है कि सर सबसे पहले मैंने 10 वैल्यू ले ली, ये तो समझ गया। उसके बाद में आपने एक नंबर मांगा जिसको सर्च करना है, वो भी ले लिया मैंने। इसके बाद मुझे क्या करना है? एक फॉर लूप स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे वो नंबर को लिस्ट में सर्च करना है, फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में, थर्ड के साथ, फोर्थ, हर एक नंबर के साथ कंपेयर करना है। जब मैच हो जाएगा तो मैं मेरा स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा, स्टेटस 1 बोलूंगा, हाँ मिल गया भाई, और ब्रेक कर दूंगा। जैसे ही मिलेगा फिर मैं आगे सर्च नहीं करूंगा, राइट स्टूडेंट? और Yes, मैंने sir. और मैंने पोजीशन को भी नोट कर लिया, ये कहाँ मिला मुझे, राइट? तो चलो हम रन करते हैं प्रोग्राम, और एंटर फर्स्ट वैल्यू 56, 32, 78, कुछ भी नंबर एंटर करो। अब बोले कौन से नंबर को सर्च करना है। अगर मान लो मैं पहला नंबर ही डाल दिया, पहला नंबर, तो अब ये क्या कह रहा है? देखो 56 इज फाउंड एंड इज प्रेजेंट एट, ये किधर प्रेजेंट है? क्या लिखना चाहिए वहां पे? 1. 1। इसलिए मैं बार बार i+1 कर रहा था वहां पे, या p+1 या i+1, जो भी आपको करना है, क्योंकि i ने अपना पोजीशन p को दे दिया और आप वही वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो, तो यू शुड से i+1। अगर मैं 37 डालता तो यहाँ पे वो 9 बोलता था, राइट Yes, स्टूडेंट्स? तो 37 नाइन्थ प्लेस में, नाइन्थ में नहीं, वो 10th प्लेस है, राइट? yes, sir. because Thank array you. starts from 0, array starts from 0। हेलो, Hello, sir. बोलो सर। सर अगर डेटा एंटर करने के टाइम पे दोनों सेम वैल्यूज डाल दिया तो? तो वो जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा उसके बाद में, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि अगर मेरे 2 वैल्यू 3 वैल्यू सिमिलर हो गए तो फर्स्ट में स्टॉप कर देगा। अगर आपका वो फोन नंबर 4 बार रिपीट हुआ तो पहला फोन नंबर जैसे ही मैच होगा, इट वोंट सर्च वेदर इट इज देयर इन द सेकंड प्लेस आल्सो, थर्ड प्लेस आल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर। यस। सर सर एक वो बार दिखाओ ना करके।
हाँ तो देखो ना, चलो मैं करके दिखाते हैं हम लोग फर्स्ट वैल्यू में भी मैंने वैल्यू डाला है। अब ये वैल्यू मैंने कितना रिपीट कर दिया, सब जगह वही वैल्यू है कि नहीं है? और मैं बोला Yes, 8 को ही सर्च करो, 8 को सर्च करो, तो कहां पे मिला 8? one. क्यों 1 बोल रहे हैं? बाकी 8 तो 2 में भी है, 3 में भी है, बट बाकी को कंसिडर नहीं करे, क्योंकि आपने First हाँ, time. अपना अपने लूप को ब्रेक कर दिया है, राइट? Yes, sir. और भी चेक करो, और थोड़ा प्ले करो इससे, और मे बी 6, 7, 6, 6, 7, 6। अब 7 आपके पास में, मैं सर्च 7 करूंगा। 7 कहाँ है बताओ मुझे, वेयर इज योर 7? 6 position. 6 में, और 9th पे भी है, लेकिन वो किसको पकड़ेगा? Six. देखो क्या बता रहा है, 7 इज फाउंड एंड इज प्रेजेंट एट 6, राइट? हाँ, तो ये वही है कि अगर बाद में भी आपके सेम वैल्यू रिपीट होंगे तो आपने लूप को ब्रेक कर दिया है, फिर आगे वो चलेगा नहीं, राइट? किया है कि नहीं लूप को ब्रेक? यहाँ पे लिखा है ना कि मैच हो जाएगा तो आपको ब्रेक कर देना है। ये लिखा है ब्रेक यहाँ पे, अगर दो वैल्यू मैच हो गया, आपका सर्च वैल्यू इज मैचिंग विद द लिस्ट वैल्यू, देन यू हैव टू स्टॉप, राइट? Yes. तो ये ब्रेक वो पूरे लूप को, इट इज नॉट कंटिन्यूइंग। लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या कर देगा? फिर ब्रेक कर देगा, सीधी बात है। अब कुछ सर ने बोला क्लास में, ऐसे ही मान लो ऑफलाइन मोड में जाओ, कैप को बुला के लेके आओ, कैप जैसे ही मिल जाएगा क्लास में, तो क्या सबका नाम फिर कैप पूछोगे क्या? अगर अननोन पर्सन को भेजा है मैंने, Mm. जाओ FYBSc IT में जाओ और just find out who is cap, so that fellow will be asking who is cap. The moment the cap is found out, what is to be done? Till that fellow has to search, अरे कैप कौन है, कि ब्रेक कर देना चाहिए उसको। Eight. ऐसा ऐसा बोलेगा तो पूरा क्लास उसको मार के बाहर भगा देगा, राइट? योर स्टूडेंट्स, Yes. ब्रेक कर देना चाहिए, राइट? द मोमेंट सर्च वैल्यू इज फाउंड आउट, वी हैव टू ब्रेक. So we have written today's two small programs where you have seen that how to search a value in a given list of values. Very important search, तो हमें लाइफ में बहुत जरूरत रहता है। और ये कहाँ पे सर्च की जरूरत है? एयरलाइन में टिकट बुक किया, अगर आपको आपका टिकट चेक करना है तो ये सर्च होता है, वहां लिस्ट रहता है और ऐसे ही सर्च किया जाता है। आपको आपका नाम देखना है, ट्रेन में देखना है, कहीं पे आपने एडमिशन में देखना है, कॉलेज की लिस्ट में देखना है, आप कैसे सर्च करते हो? स्टार्ट तो फर्स्ट से ही चालू करते हो ना। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो आप उसमें जंप कर जाते हो, थोड़ा आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा देते हो कि हाँ मेरा नाम अल्फाबेटिकल से ये होता है, फिर अगर एस से स्टार्ट हुआ तो एस की लिस्ट में चालू हो जाते हो, राइट? यस और नो? बट कंप्यूटर कैसे सर्च करेगा? कंप्यूटर के पास तो अपनी खुद की एआई नहीं रहेगी ना, सी प्रोग्रामिंग की। वो तो पहले से कंपेयर चालू करेगा, जहां पे मैच होएगा फिर बोलेगा यस सो एंड सो इज फाउंड। तो ये जो सर्च है, ये आप बोलो कहाँ पे नहीं है? मॉल में जाते हैं, जो आपका बिलिंग होता है, जैसे ही बारकोड आता है, बारकोड सर्च होता है डेटाबेस में, राइट? यस और नो? क्या स्टेटस और पी? स्टेटस कुछ नहीं है। आप एस लिख दो, आप ए लिख दो, बी लिख दो, कोई भी वेरिएबल नेम दे दो, ऐसा कुछ नहीं कि स्टेटस ही मुझे लिखना है, राइट? मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, मैं या तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, या ये लिस्ट में नंबर होगा या नहीं होगा। मैंने अज्यूम करके लिखा है कि नंबर नहीं है लिस्ट में। अब जब नहीं है, मतलब आप स्टेटमेंट आप ट्रू बोल रहे हो कि फॉल्स बोल रहे हो? ट्रू मतलब क्या हो? हाँ, फॉल्स है। ट्रू मतलब कोई चीज ट्रू है, राइट है प्रेजेंट है, और कोई चीज नहीं है तो फॉल्स है, राइट स्टूडेंट्स? तो जो मैंने अज्यूम किया कि स्टेटस मतलब नंबर नहीं है, लिस्ट में नहीं है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। तो मैंने स्टेटस, अपने अजम्पशन को, अपने स्टेटमेंट को, अपने माइंड में जो बात चल रही है, मैं क्योंकि मुझे अज्यूम करना है और फिर सर्च करना है,
मैं ये सोच के सर्च चालू कर रहा हूँ, नंबर नहीं है, मिलेगा तो मैं फिर मेरा स्टेटमेंट बदल दूंगा। तो मैंने ये सोच के सर्च जारी किया, स्टार्ट किया कि नंबर इज नॉट प्रेजेंट, स्टेटस इज 0, फॉल्स। एंड आफ्टर गेटिंग द नंबर, व्हाट आई एम डूइंग, I'm started searching from first number onwards. The moment I found out the number, once if में मैच हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, मैंने मेरे स्टेटमेंट को बदल दिया। मैंने जो बोला था 0, अब वो बात नहीं है सर, वो है, नंबर प्रेजेंट है। तो 1 हो गया तो मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट स्टूडेंट्स? इट इज नॉट जस्ट 1 and 2, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दो। ऐसा नहीं कि 0 1 ही करना है। मैंने बोल दिया चलो भाई स्टेटस 100 डाल दिया, ठीक है, स्टेटस 100 डाल दिया मतलब नंबर नहीं है, और स्टेटस 200 डाल दिया मतलब नंबर है। आपको क्या कोड देना है आप अपनी मर्जी से दो। तो 200 है मतलब क्या है, 200 डाला मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, नंबर मिला, और 100 ही रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं मिला। आप कैरेक्टर में एबीसीडी लिख दो, जो भी आपको लॉजिक लगाना है। मैंने लिखा एन, देखो अभी मैं फिर से कितना लॉजिक से कर सकते हैं। स्टेटस मैंने यहां से हटा दिया, आई डोंट वांट स्टेटस। मैं आपको दूसरा आपकी लैंग्वेज में बताता हूं। कैरेक्टर, कैरेक्टर एक्स इज इक्वल टू नंबर इज नॉट फाउंड, मैंने एन दे दिया, नो इट्स नॉट अवेलेबल, राइट स्टूडेंट्स? एक्स इज एन, नंबर इज sir. नॉट अवेलेबल, एन मीन्स नो, नहीं है बाबा। और अगर मिल गया तो मुझे क्या बोलना चाहिए, वाई बोलना चाहिए, नहीं Is बोलना equals चाहिए? to A. इज इक्वल टू वाई, यस बोलूं कि नहीं बोलूं? मिलेगा तो वाई Yes. करूं? Yes. आपकी लैंग्वेज में, आप जो लैंग्वेज समझोगे उसमें हम बताएंगे आपको। अब मैं चेक कर रहा हूं मेरा एक्स क्या है, नो है कि यस है। तो अगर यस हो गया है तो फिर मैं बोलूंगा, देखो यस मिलेगा तो मैं बोलूंगा फाउंड हुआ, और एक्स मेरा नो ही रह गया तो मैं क्या बोलूं, Not found. नॉट फाउंड। यस, कैफ अली आप समझ रहे हो? आपकी आप बात समझ रही, नंबर मैंने बोला नहीं है, नो, बट जब मैंने मैच किया तो मुझे मिल गया, तो मैं क्या बोलूं, अपने स्टेटमेंट को वैसे ही रखूं कि चेंज करूं? और चेक करूं अब, या तो मुझे मालूम है मेरा, तो या तो एक्स मेरा वाई होगा या तो नो होगा, या तो यस होगा या नो होगा, राइट? अगर यस होगा मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा मतलब मेरा स्टेटमेंट क्या, अगर यस हो गया दैट मींस नंबर मिल गया है मुझे, अगर वो नो ही है तो मतलब नंबर नहीं मिला, राइट? वही तो मैंने प्रिंटफ में लिखा है, मैं चेक करूं मेरे स्टेटमेंट को। और P इज इक्वल टू, P जो वैल्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आपकी पोजीशन को बताता है कि जो ए आई इज इक्वल टू एक्स हुआ है, ए आई इज इक्वल टू एक्स हुआ है, तो ये आई का वैल्यू बताएगा वेदर A5 में एक्स हुआ है, या A6 के बाद एक्स हुआ है, या A7 पे एक्स हुआ है। बिकॉज मुझे जब नंबर मिलेगा तो ये नहीं बोलूंगा कि नंबर मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे ये भी बताना है कि कहाँ पे मिला है ये। कोई जैसे बड़ी लिस्ट है, 1000 लोगों की लिस्ट में है, और बाद में किस तुमने आके बोल दिया हाँ वो तो था मैंने देखा था, कहाँ देखा था? अगर आप उसको पोजीशन बता दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, वो पोजीशन पे जाके चेक कर लेगा, नहीं तो फिर से उसको फिर से सर्च करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ देखा था, मैं 2 दिन से सर्च कर रहा हूँ मुझे तो नहीं मिल रहा है, राइट स्टूडेंट? हेलो? तो जस्ट पोजीशन बताने के लिए, कोई सर्च हो गया है तो मुझे क्या बताना चाहिए, पोजीशन बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तो ऐसा ही है कि जब आपने कोई काम किया है तो उसको आप बताओ कि यस मुझे मिला है, मैंने देखा है। कहाँ पे मिला है, रियल लाइफ में बात होती है ना, घर में ही कोई चीज इधर उधर हो जाती है, आप बोले मैंने तो देखा था, कहाँ पे देखा था बताओ, अब बताओ, मैंने तो देखा था, अब कहाँ देखा था मुझे थोड़ी नहीं याद नहीं है। ऐसा कैफली बोलोगे तो तुमको लोग क्या बोलेंगे घर पे? आप बोल रहे हो मैंने देखा था, कहाँ देखा है? तो कहाँ देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रिस्पेक्ट कब होगी, जब वो बताओगे कहाँ देखा है, राइट? Position. हाँ। और अगर वो नहीं बता रहे तो बोलेंगे अरे ये तो कुछ भी बोलता है, ये हमेशा ऐसे ही बोलता है, मैंने देखा है, कहाँ देखा है इसको पूछे तो कभी बता ही नहीं पाता है। बाद में आपको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, केयरफुली करेंगे क्या? तो हमेशा बोलता है, ऐसा नहीं कि और टेलिंग लाई,
वैल्यू रहेगा, लेकिन पोजीशन बताओगे तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। और सिर्फ बताओगे है और पोजीशन नहीं बता पाते हो, तो फिर मतलब दूसरा बंदा जब सर्च करने जाता है आपके यस को, फिर उसको भी उतना ही टाइम लग जाता है, राइट? तो आप पोजीशन बताओगे तो उसको सर्च करने में कम टाइम लगेगा, दूसरे को कि ज्यादा लगेगा? तो कम पोजीशन टाइम बता देना चाहिए, पोजीशन बता देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए आपके हिसाब से? बताना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू वही कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट? यस सर। अच्छा, एक वेरिएबल एक्स, मल्टीपल एक्स क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है स्टूडेंट्स। एक्स तुमने एक वैल्यू में भी रखा है और यहाँ पे भी रखा है, तो एक जगह मैं नाम बदल देता हूँ। इसको मैं डबल एक्स कर दिया और मैं डबल एक्स रीड करूंगा और मैं डबल एक्स कंपेयर करूंगा और प्रिंट में भी लिखूंगा डबल एक्स इज फाउंड। क्या प्रॉब्लम हुआ था? एक्स एक इंटीजर वेरिएबल भी हो रहा था और कैरेक्टर वेरिएबल भी हो रहा था। सो यू कैन नॉट से, कंपाइलर बोलेगा क्या बोल रहा है बाबा, 1 बाइट रिजर्व करूं कि 2 बाइट्स रिजर्व करूं, राइट? स्टूडेंट्स आप देखो, यस मैं, हाँ, 999 10 999 10, maybe again 10, that's not a problem, 9, what value you want to find? अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे 10 बताओ, तो बता रहे वो 10 आपका कहाँ पे है? 10 फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ। हुआ। ये इजी है कि तुम जैसे ऐसे ही बोल दोगे 10 इज फाउंड। हाँ, ये अच्छा है, ये जी। ये अच्छा है। सो आई विल वाइंड अप स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर हैविंग अ लेक्चर नाउ, राइट? यस, सो आई विल क्लोज। यस सर। हाँ ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ, कर रहा हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इवन हेलो, द। यस सर। हाँ, मैं सब अपलोड करता हूँ अभी, ठीक है, बट आई विल क्लोज द मीटिंग राइट नाउ। मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है? सर ऑल्सो द प्रीवियस। प्रीवियस वन, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, टेक केयर।